Journal entries have been told to you yesterday, and today I will try to give you one complete question where all those journal entries will be used and two more entries you will have to do. Turn your cameras on. Journal entries will be done, and everybody will note down the method which you will use to do these type of questions of share where issue of shares is there. I'm taking an example and we will do the journal entries related to that. Suppose a company Ravi Limited invited applications for 50,000 shares. Applications for 50,000 shares. Ravi Limited invited applications for 50,000 shares from the public of ₹10 each. The face value of shares is ₹10 each, and company is issuing the share at par, PAR. Note कीजिए कहीं पर, this is the first case. Company is issuing the share of ₹10 at ₹10 only. कंपनी 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही इशू कर रही है. इसको कहते हैं एट पार. पार मींस पैरेलल टू द फेस वैल्यू. अगर कंपनी 10 रुपए से ज्यादा में शेयर इशू करेगी, इट विल बी एट प्रीमियम. और अगर कंपनी 10 रुपए से कम में उसे इशू करेगी, इट विल बी एट डिस्काउंट. सो दिस इज द फर्स्ट केस where company is issuing shares at ₹10, face value ₹10, and it is issued at ₹10 only, at par. Payments by the public is to be made as follows. On application, these are the four stages when the public will deposit money into the
बैंक to be paid to the company. आप जितने भी शेयर खरीदना चाहते हैं उसमें पर शेयर 3 rupees you will have to pay at the time of application, applying. 3 rupees you will pay at the time of allotment of shares, when the shares will be allotted to you by the company. Thirdly, when the first call will be made, third time you will pay rupees 2 per share, and finally you will pay rupees 2 per share at the end. This is the whole thing you have to do. I hope the question is very much clear to you. A company, Ravi Limited, is issuing shares to general public, and it is issued in such a way 50,000 shares are issued. हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और 10 रुपए में ही कंपनी वो शेयर दे रही है पब्लिक को. इट इज इशूड एट पार. पार मींस पैरेलल टू द फेस वैल्यू. जितने रुपए में कंपनी शेयर दे रही है पब्लिक को उतने ही रुपए का वो शेयर है भी. एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 3 रुपए देने हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपए देने हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 2 रुपीज एंड सेकंड कॉल के टाइम पे 2 रुपीज. आई होप दिस इज क्लियर कि कब कितना कितना क्या क्या देना है. नाउ जनरल एंट्रीज आपको कल लिखवाई थी. ऑल दोज जनरल एंट्रीज विल बी यूज्ड इन दिस. All those journal entries will be used in this 8 journal entries. I gave you 9 क्योंकि इसमें हम किसी को भी पैसे वापस नहीं करेंगे, इसलिए वो रिफंड वाली एंट्री नहीं होगी. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक विल नॉट बी देयर. तो जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे? टर्न टू दिस साइड. There are 50,000 shares. 50,000 shares of rupees 10 each. There are 50,000 shares of 10 each. These are the 4 stages and these are the 4 times a shareholder has to pay the money. Each time how much he will pay, you can multiply and find out. You have to calculate on 50,000 shares. Public has applied for 50,000 shares. All the shares were taken by the public. All the shares were subscribed and fully paid. सब लोगों ने सारे पैसे दिए. इसका मतलब इट इज वेरी सिंपल. 50 into 3 1,50,000. 50 into 3 1,50,000. 1 lakh and 1 lakh. These are the 4 stages. Whenever we do a question on shares, first one is always application, second one is always allotment, third one is first call, second one is final call, right? So always keep in mind these 4 stages: application, allotment, first call, final call, or second call you can say. Last call is final call. आखिरी बार जब पैसे मांगे जाएंगे वही लास्ट कॉल होगी. अगर फर्स्ट कॉल में ही सारे पैसे मांग लिए बचे हुए, फर्स्ट कॉल में यहां पर अगर 4 रुपए मांग लिए तो फिर फाइनल कॉल, सेकंड कॉल होगी नहीं. मीन्स टू से दैट फर्स्ट कॉल विल बिकम द लास्ट एंड द फाइनल कॉल. तो अब जनरल एंट्री जो है, कल जो आपने जनरल एंट्री लिखी थी
फटाफट वो 8 जर्नल एंट्रीज आप उतार लीजिए, फॉर्मेट बनाइए जर्नल एंट्री वाला। मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। आई विल आस्क यू इन बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स से कि कौन कौन सी जर्नल एंट्री आपने लिखी है। लाइन से बिलाल, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली जनरल एंट्री लिखिए, फॉर्मेट बनाइए, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। वेरी क्विकली, फास्ट, within 5 minutes write all the journal entries which I dictated you yesterday. Pushpreet, turn the camera on. Jasanjeet, Anshika, Anjali, turn the camera on. Jasanjeet, turn the camera on. Anjali, turn your camera on. So Anjali has been removed. Ayush, Ayush Yadav, संस्कार, जनरल एंट्री बताइए, पहली और दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड। संस्कार, पहली एंड दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड जनरल एंट्री, प्लीज टेल। Bank account debited to share application account. Wait, Share. this is the first journal entry when application money is received from the shareholders. Please write the amount, 1,50,000. Bank account debit to share application account, 1,50,000. बेटा आपको मैंने बताया है there are 4 stages और 4 स्टेजेस में 2-2 जनरल एंट्री है, मिला के हो गई 8, मिला के हो गई 8 जनरल एंट्रीज। उनमें हर एक में, हर स्टेज में एक एंट्री है जिसमें पैसे रिसीव होते हैं और दूसरी एंट्री है जिसमें हम ड्यू करते हैं। तो ये जो पहली स्टेज है, फर्स्ट वाली, एप्लीकेशन वाली, इसमें पैसे पहले रिसीव होंगे और आप ट्रांसफर बाद में करेंगे शेयर कैपिटल में। तो दूसरी जनरल एंट्री क्या है स्टेज फर्स्ट में? संस्कार, Share application account debited to share capital account. वेरी गुड। दूसरी एंट्री में भी यही अमाउंट लिखेंगे, 1,50,000, 1,50,000 which is received from the shareholders as application money is part of share capital, so that money will be transferred to share capital account. Share application account debit to share capital account. अगर आप दोनों एंट्री को कंबाइन करें तो आप देखेंगे कि जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अंशिका, करेक्ट और नॉट? अगर हम दोनों जनरल एंट्री को कंबाइन कर दें, जो अभी हमने की है फर्स्ट एंड सेकंड,
तो आप देख रहे होंगे उसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल हो गया। यस सर। पहली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ, बोथ गॉट कैंसल्ड। एक जनरल एंट्री बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट वी विल शो देम सेपरेटली बिकॉज दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेजेस। एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होता है उसके बाद उसे ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। वेरी गुड। ये जो पहला अमाउंट है 1,50,000, इसकी दो एंट्री कर दी आपने, स्टेज 1 एप्लीकेशन स्टेज। नाउ कम टू स्टेज 2। वंशिका, स्टेज 2 में पहली एंट्री क्या होगी? वंशिका, स्टेज 2। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा नो, सेकंड स्टेज में पहली एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की। आप शेयर होल्डर को ये बताएंगे ना पहले कि आपको हमने शेयर्स अलॉट करने हैं, आप अलॉटमेंट मनी भेजिए। अलॉट करने मतलब आपको हम शेयर्स दे रहे हैं, आपका नाम हमारी कंपनी के बुक्स में लिखा जा रहा है। नाउ यू आर बिकमिंग द शेयर होल्डर। सिर्फ एप्लीकेशन मनी भेजने से कोई शेयर होल्डर नहीं बनता है। जब कंपनी शेयर अलॉट कर देती है उन्हें, आपके नाम पे अलॉट हो जाता है, आपका नाम रजिस्टर में चढ़ जाता है, तब शेयर होल्डर बनते हैं आप उस कंपनी के। तो पहली एंट्री होगी, अब पहली एंट्री तीनों स्टेजेस में, सेकंड स्टेज अलॉटमेंट, थर्ड स्टेज फर्स्ट कॉल, फोर्थ स्टेज सेकंड कॉल। इन तीनों जगह में पैसे बाद में आएंगे, आप ड्यू पहले करेंगे। जबकि पहली वाली स्टेज में पैसे पहले आ गए और बाद में आपने उसे ट्रांसफर किया। पॉइंट टू बी नोटेड वंस अगेन, in the receipt of application money stage, first stage money is received first, इसलिए पहले एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री है ट्रांसफर करने की। लेकिन स्टेज नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज टू से अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट कॉल स्टेज एंड फाइनल कॉल स्टेज और सेकंड कॉल स्टेज, फर्स्ट यू विल मेक इट ड्यू। जब तक आप ये बताएंगे नहीं शेयर होल्डर को कि आपको अलॉटमेंट के पैसे भेजने हैं, आपको अब फर्स्ट कॉल के पैसे भेजने हैं, आपको अब सेकंड कॉल के पैसे भेजने, हाउ विल ही नो? कंपनी जब पैसे मंगाती है उसके 14 डेज के टाइम में शेयर होल्डर्स को वो पैसे जमा करने होते हैं। तो सेकंड स्टेज में जो फर्स्ट एंट्री है, और वैसे लाइन में हो गई तीसरे नंबर की एंट्री, थर्ड एंट्री वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन 1,50,000। ये अमाउंट पहले कैलकुलेट कर लेंगे आप, इसमें हर एक में कैलकुलेशन है। कैसे निकल रहा है ये अमाउंट? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल मनी। फिर जब आपने ड्यू कर दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर होल्डर्स पैसे देना शुरू करेंगे। तब जब वो पैसे देंगे तब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये है एंट्री नंबर 4 और सेकंड स्टेज की सेकंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें भी आप नोट करेंगे थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री को अगर कंबाइन करें तो जनरल एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी, सारा पैसा किसमें चले जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अलॉटमेंट विल गेट कैंसल्ड, अलॉटमेंट विल गेट कैंसल्ड। खुशप्रीत, एंट्री नंबर 5, स्टेज थर्ड की फर्स्ट एंट्री। खुशप्रीत,
Sir, bank account debit to share application of first call account. क्या कह रहे हो आप? फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे पहले पैसे मिल थोड़ी जाएंगे, बैंक अकाउंट कैसे आ गया पहले? अभी अलॉटमेंट वाले में क्या करा था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नोट करिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख रुपीस अमाउंट आएगा, 1 लाख रुपीस। आपने शेयर होल्डर को बता दिया कि भाई आप 1 लाख रुपीस जमा करिए, आपके पैसे ड्यू है। 14 डेज का आप टाइम देंगे, शेयर होल्डर्स पैसे जमा करना शुरू करेंगे। जब शेयर होल्डर पैसे जमा करेंगे तब एंट्री होगी आपकी जो आपने अभी बताई, वो बताएंगे आप प्रिंसिपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। वेरी गुड। फिर आप एंट्री करेंगे जब पैसे रिसीव होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। वेरी नाइस प्रिंसिपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद फाइनल कॉल वाली एंट्री कर दीजिए प्रिया। प्रिया, Sir, share second call. Sir, share second call account debit to share capital account. वेरी गुड। 1 लाख रुपीस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपीस। और बिलाल लास्ट एंट्री क्या होगी फिर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। आपके कंपनी की अकाउंट बना रहे हैं आप, ये कंपनी के पास फ्रॉम द बिगिनिंग एप्लीकेशन से लेकर फाइनल तक सारे पैसे आ गए, सारे शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए। All the money was received, duly received. मान लीजिए ये सारे प्रोसेस में 5,000 रुपए खर्च हो गए। दे आर नोन एज शेयर इशू एक्सपेंसेस। दे आर नोन एज शेयर इशू एक्सपेंसेस। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ खर्चा हो गया है शेयर्स को इशू करने में और उसकी पेमेंट की गई, तो उसकी भी जर्नल एंट्री लिख लीजिए। Entry on payment of expenses. Entry on payment of share issue expenses. Journal entry will be share expenses, share issue expenses account debit to bank. Share issue expenses account debit to bank account. इसको भी साइड में नोट कर लीजिए। अब आपके पास टोटल जर्नल एंट्री हो गई है 10। टोटल जर्नल एंट्री हो गई है 10। एक और एंट्री नोट करिए। वन मोर इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रोमोटर्स, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रोमोटर्स, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं प्रोमोटर्स और वो बाद में शेयर होल्डर भी बन जाते हैं कुछ, हम उनको कुछ शेयर, कंपनी उनको कुछ शेयर देती है फॉर देयर सर्विस। फॉर देयर सर्विस ये जो पैसे उन्हें दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इनको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। फॉर्म को इनकॉर्पोरेट करने में, फर्म को इनकॉर्पोरेट करने में, फॉर्म करने में ये पैसे खर्च हुए कंपनी के। तो when shares are issued to promoters for their service,
Journal entry will be, write down incorporation cost, or you can write formation cost account debit. Incorporation cost or formation cost account debit to share capital account. हमने उन्हें पैसे नहीं दिए, हमने उन्हें शेयर्स दिए. So we will not write bank. Incorporation cost or formation cost account debit to share capital. I am sure it is clear to everyone. Whatever we have done today, one question we have done, and in that one question I have told you all the stages from 1 to last, application to final stage, all money is received, share issue expenses are paid, and incorporation cost के लिए भी आपने promoters को कुछ shares दिए. तो टोटल 10 जनरल एंट्री हो गई इस क्वेश्चन में या इस पूरे प्रोसेस में. यू हैव टू नोट डाउन द प्रोसेस स्टेप्स. इफ यू नो द जनरल एंट्रीज ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, एटलीस्ट जनरल एंट्री आपकी करेक्ट होगी. अमाउंट स्लोली यू विल कम टू नो हाउ टू कैलकुलेट. ओके, कीप योर वर्क अपडेटेड. सेंड योर कंसर्न लेटर टू योर क्लास टीचर जो उन्होंने आपको लिंक दिया है, so that within 2 or 3 days schools may reopen. We are still collecting the consent letters from the parents. Once we collect at least 50%, we are going to open the schools, reopen the schools. Till then, keep yourself updated, keep your work updated, take care of yourself, and God bless all of you.